Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started about the digital systems and logic or the digital system and design subject, and we have already studied the two topics, that is the logic gates, and also we have studied about the number systems. I have also told you about the binary course in the last three lectures. So if you have not studied those lectures, please go into my channel, that is Dr. Nikita's Tricky Solution, and you will get the playlist digital system design, and in that playlist you will get all the three lectures. And if you want to understand the concepts in detail, like of number system and the conversion between the two base, you can also have it in my BEEE playlist. In that I have taught in and explained with several examples, so you can have that also. So let's begin with today's topic. Today's topic of our lecture is Boolean algebra. So students, what is a Boolean algebra? So Boolean algebra is an algebra which deals with binary numbers and binary variables. Hence, it is also called as binary algebra or logical algebra. A mathematician named George Boole had developed this algebra in 1854. And the variables used in this algebra are also called as Boolean variables. So as we already know that we are studying about the digital system design, so here maximum times when we will discuss about any mathematics or any equation, then it will be on the digital numbers. Okay, so here also the Boolean algebra is about the binary numbers and the binary variables, and we already know that in the binary numbers we have only two digits, that is 0 and 1. Okay, so always keep this in mind. So once again I'll repeat it, that Boolean algebra is an algebra which deals with binary numbers and binary variables. Hence it is also called as binary algebra. And the mathematician who has invented this or who has developed this algebra in 1854 was George Boole. So the variables used in this algebra are also called as Boolean variables. Okay, so the range of the voltage corresponding to logic high is represented as 1, and the range of the voltage corresponding to logic low is represented with 0. मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए थे, कि हमारे पास एक जब भी हम डिजिटल लॉजिक की बात करेंगे तो उसमें बाइनरी नंबर्स ही फॉलो होते हैं, और उस बाइनरी नंबर में जो है हमेशा 0 और 1 होगा। इसका मतलब साफ है कि जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दो ही लॉजिक हो सकते हैं, एक हाई लेवल लॉजिक और एक लो लेवल लॉजिक। हाई लेवल लॉजिक को हम 1 से डिनोट करते हैं, लो लेवल लॉजिक को हम 0 से डिनोट करते हैं। नाउ कम्स द पोस्टुलेट्स एंड द बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब जब हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ी थी बचपन में, जब हमने शुरू किया था, तो अलजेब्रा के कुछ ना कुछ रूल्स होते थे। सिमिलरली जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे तो भी हमारे कुछ रूल्स होंगे। So in this section we will be discussing about the Boolean postulates and the basic laws that are used in the Boolean algebra, and these laws are useful in minimizing the Boolean function. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम Boolean फंक्शन बनाते हैं उसको फाइनली हम लॉजिक गेट से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें अगर कॉस्ट इफेक्टिव सर्किट बनाना है तो हमें मिनिमम लॉजिक गेट्स यूज़ करने होंगे, और उससे हमारा क्या जो है वो टाइम भी जो है प्रोपोगेशन टाइम डिले है वो भी हमारा कम होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो भी हमें फंक्शन मिलेगा उसको हमें सबसे पहले मिनिमाइज़ करना होगा, है ना। सो दीज बूलियन पोस्टुलेट्स और बेसिक लॉज विल बी यूज टू मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ बूलियन फंक्शन। सबसे पहले हम कुछ बूलियन पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो पोस्टुलेट है दैट इज़ कंसीडर द बाइनरी नंबर 0 and 1 बूलियन वेरिएबल x। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जो कि x है, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज x डैश, और वी कैन से एज x कॉम्प्लीमेंट। Either the Boolean variable or component of it is known as literal, that's okay, and the four possible logical or operations among these literals and binary numbers are shown below. तो अगर हम किसी भी एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, सपोज दैट वेरिएबल इज़ x और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो x डैश है या x कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके साथ अगर हम और ऑपरेशंस की बात करेंगे तो हमको 4 टाइप्स ऑफ और ऑपरेशन मिलेंगे। और ये जो 4 टाइप्स ऑफ और ऑपरेशन है आपको ये हमारे विंडो पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस तरीके के 4 ऑपरेशंस जो है वो हम देख सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन इज़ लाइक x और 0। तो 0 के साथ अगर x हमारा होगा
तो उसका जो आंसर या आउटपुट जो होगा वो हमेशा x होगा। तो अगर हमारा वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 विल बी 0, एंड इफ़ द वेरिएबल वैल्यू इज़ 1 देन 1 प्लस 0 और 1 और 0 विल बी 1, है ना। तो ये जो हमारा पहला पोस्टुलेट है, पहला रूल जो है दैट सेज दैट वेरिएबल और 0 इज़ the output will be the variable. Then similarly variable when we do the logic operation of OR with 1, we'll get 1, and if the OR condition or OR logic is put on the variable from itself, like x or x will be equal to x only and x or x dash will be equal to 1. अगर आपको इन जो हमारे मैंने अभी आपको जो ये 4 बेसिक रूल्स बताए हैं, जो ये पहला पोस्टुलेट है फॉर लॉजिकल और ऑपरेशन, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप चाहें तो इसका ट्रुथ टेबल बना के भी देख सकते हैं। आप ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है, ठीक है। और ट्रुथ टेबल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। वैसे दिस इज़ वेरी ईजी एंड आई नो दैट यू हैव स्टडीड इट इन BEE सब्जेक्ट, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसको पढ़ने में या उसको समझने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। स्टिल दीज आर द 4 postulates which are very easy. So again I am repeating the 4 once again, that x or logical operation with 0 will always be x logical operation or with 1 will be 1, x or x will be x, and x or x complement will be 1. Okay, so these are the 4 basic rules that you should know and you should remember. Then again we have another 4 rules. These 4 rules are रिलेटेड टू द लॉजिकल एंड ऑपरेशन, है ना। ये जो हमारे अब अगले जो 4 रूल्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लॉजिकल एंड ऑपरेशंस। एंड एज यू कैन सी व्हेन वी से दैट x एंड 1 और इफ वी से x डॉट 1, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वी सपोज दैट x इज़ 0, सो 0 डॉट 1 विल बी इक्वल टू 0 ओनली, एज वी ऑलरेडी नो दैट एंड ऑपरेशन में अगर हमारा एक भी 0 है तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 ही आएगा। एंड इफ़ वी डू इट 1 डॉट 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो दैट व्हेन बोथ द 2 इनपुट्स आर 1 देन ओनली वी विल गेट द आंसर एज 1। सो पहला वाला जो है हमने यहीं पे प्रूव करके देख लिया है, दैन दैट इज़ प्रूव्ड। सो अगेन द नेक्स्ट इज़ द x डॉट 0 और x एंड 0 विल बी 0, x एंड x विल बी x, एंड x एंड x कॉम्प्लीमेंट विल बी 0। सो आप जहाँ देखेंगे कि हमारे जो ये पोस्टुलेट्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप और लॉजिकल ऑपरेशन वाले पोस्टुलेट्स और एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाले जो हमारे रूल्स हैं इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आपको इसको याद रखना भी आसान होगा। ओके, और कभी अगर आप एग्ज़ाम में इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको सॉल्व करके तुरंत देख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। सो इट्स नॉट दैट टफ टू रिमेंबर। ओके, सो देन these are the simple boolean postulates. We can verify these postulates easily by substituting the boolean variable with 0 and 1. So one thing to be noted is the complement of the complement of any boolean variable is equal to the variable itself. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलती हूँ कि x हमारा वेरिएबल है then it will be equal to x complement का complement। ओके, यानी अगर x को हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब 2 बार उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल टू x। इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। इफ़ x इज़ 0 तो इसका जब हम फर्स्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 1, एंड देन व्हेन वी अगेन कॉम्प्लीमेंट इट, व्हेन वी अगेन टेक आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट देन वी विल गेट 0। सो ऑब्वियसली व्हेन वी डू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल 2 टाइम्स देन वी विल गेट द वेरिएबल इटसेल्फ। ओके, सो देन बेसिक लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। अभी जो हमने थोड़े जो है वो पोस्टुलेट्स पढ़े थे, अब हमारे कुछ बेसिक लॉज हम पढ़ेंगे बूलियन एल्जेब्रा के, एंड दीज लॉज विल ऑल्सो बी यूज्ड टू मिनिमाइज द equations. Okay, so or the minimize the functions. The following are the 3 basic laws of Boolean algebra. These are commutative law, associative law and the distributive law. ये 3 law हैं जो बहुत important हैं and बहुत easy हैं. So we'll study about that. So first is the commutative law. So what a commutative law says, जैसा कि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जब हमने मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा था बचपन में, तो दिस इज़ वेरी इजी लॉ, लाइक 2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 3 + 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5। इट मीन्स अगर हम हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस मैंने हमारे जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में करते हैं, तो उसमें अगर हम प्लस
की बात करें या फिर हम अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इन बोथ द केसेस इफ़ वी डू 2 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6 एंड इफ़ वी डू 3 इंटू 2 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर रिवर्स में भी करके सेम ऑपरेशन करते हैं तो हमको उसका आंसर जो है वो नहीं बदलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है दैट ऑल्सो सेज द सेम, that if any logical operation of two boolean variables give the same result irrespective of the order of those two variables, then that logical operation is said to be commutative। और हमारा जो boolean algebra होता है उसमें और एंड जो दोनों ही लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों ही जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो दोनों ही जो है कम्यूटेटिव हैं। इसका मतलब है ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है दैट इज़ सेटिस्फाइड। So this is the commutative laws expression that x or y is equals to y or x and x and y is equals to y and x. Okay, so as we know that plus indicates the or operation and dot indicates the and operation. So this is the commutative law. The second one is the associative law. So if a logical operation of any two variables is performed first and then the same operation is performed with the remaining variables gives the same result, then the logical operation is said to be associative। अब जैसे हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ था हमने उसमें ये बात की थी कि अगर हमने दो वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन जो है उसको किया है, कोई भी ऑपरेशन लगाया है हमने किसी भी दो वेरिएबल में, तो अगर हमने वेरिएबल का ऑर्डर चेंज कर भी दिया और उसका हमें फिर भी आउटपुट सेम मिल रहा है तब हम ये कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ में होता है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन पहले किया। I mean, अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और हमने पहले दो के साथ एक ऑपरेशन किया एंड देन उनका जो रिज़ल्ट आया है वो उसके बाद हमने वो थर्ड वेरिएबल के साथ सेम ऑपरेशन किया तो जो रिज़ल्ट आया और उसके बाद हमने इसका उल्टा किया। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सॉरी ये जो y प्लस जेड है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ओके, सो इफ़ आई से here that if I do x plus y first and then I that x or y plus and then with the resultant of x or y I do it with again with the z वेरिएबल, यानी जो x और y का जो हमारा रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट को लेकर हमने z के साथ फिर से और फंक्शन लगाया। इसका मतलब पहले हमने और क्या किया, x और y में किया एंड देन z में किया। और अगर इसको मैं बदल दूँ, अगर मैं इसको बदलूँ कि मैं पहले y प्लस जेड का कर दूँ एंड देन x के साथ करूँ तो भी हमारा जो रिज़ल्टेंट है वो सेम आएगा। उस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा जो आंसर है मैंने मतलब हमारा जो लॉ है इसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने वेरिएबल के ऑर्डर्स को चेंज किया था, अब हम तो अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं 1 + 2 + 3 कर रही हूँ, है ना, 1 + 2 + 3, इसमें मैं पहले 1 + 2 को सॉल्व कर रही हूँ देन 2 + 3 को सॉल्व कर रही हूँ, मतलब जो इसका रिजल्टेंट आया उससे 3 को ऐड करके सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 6। लेकिन अगर मैं इसमें 2 + 3 पहले कर दूँ और फिर 1 से ऐड करूँ तो भी मुझे आंसर मिलेगा 6, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी बात हो रही है कि अगर हमने तीन वेरिएबल को लिया है, पहले दो वेरिएबल के साथ पहले मैंने एंड ऑपरेशन लगाया, फिर उसके रिज़ल्ट के साथ जो भी रिज़ल्ट आया मैंने उसके साथ तीसरे वेरिएबल का एंड ऑपरेशन लगाया, तो जो मुझे रिज़ल्ट आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू कि अगर मैं पहले लास्ट टू वेरिएबल्स जो है यानी सेकंड और थर्ड वेरिएबल के साथ सेम ऑपरेशन लगाऊं एंड देन फिर उसका रिजल्ट के साथ मैं फर्स्ट से सेम ऑपरेशन लगाऊं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ ओबेज ओनली लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ था। देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, so what does a distributive law says? So if any logical operation can be distributed to all the terms present in the Boolean function, then that logical operation is said to be distributive. So the distribution of the logical or and logical and operation of the three, अगर मेरे पास अगर x y z है तो अगर मैं कहती हूँ कि x y plus z ये है, ठीक है, और यानी इसका मतलब साफ है कि मैंने पहले y और प्लस z यानी y और z के साथ और फंक्शन लगाया एंड देन इसका जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसके साथ हमने एंड फंक्शन लगाया, तो जो हमारा आउटपुट आता है दैट इज़ आउटपुट 1। सो इफ़ दैट इज़ इक्वल्स टू x.y प्लस y.z, तो इन दोनों का आउटपुट यानी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 अगर हमारा सेम है देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आया कि अगर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ
if I have x dot that is x एंड ऑपरेशन विथ y और z, ठीक है, तो इसका अगर हमारा आउटपुट आता है आउटपुट 1 है ना, मतलब हमने पहले y प्लस जेड किया, उसमें और लगाया यानी y और में, और फिर इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आता है उसको हमने x के साथ एंड ऑपरेशन में लगाया, तो हमें आउटपुट मिलता है 1, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यही करती हूँ x एंड y और x एंड z यानी x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे मिलता है आउटपुट 2। तो अगर आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 आर सेम देन इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हमारे इस केस में जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है उसमें और एंड फंक्शन जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो अभी हमने सबसे पहले पोस्टुलेट्स पढ़ा, फिर हमने 3 लॉस पढ़े, और अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम्स की। तो आपने मैथ्स में थ्योरम्स भी पढ़ी हुई है ना, तो वैसे ही सिमिलरली हमें बूलियन अलजेब्रा में भी जो है थ्योरम्स पढ़नी होंगी। इसमें जो मेन 2 थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ड्युअलिटी थ्योरम एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके। तो सबसे पहले हम ड्युअलिटी थ्योरम की बात करते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the dual of the Boolean function is obtained by interchanging the logical AND operator and logical operator and zeros with 1। तो एक्चुअली क्या है, डुअलिटी थ्योरम का ये कहना है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आई से दैट आई हैव x डॉट 1 is equals to 0, example है, okay, just an example, this is not true। so x dot 1 is equals to 0। तो अगर इसका ये कहना है कि ड्यूअलिटी थ्योरम ये है कि अगर हम इसमें जितने भी जो भी 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दें, 0 को 1 से रिप्लेस कर दें, और हमारा अगर एंड लॉजिकल ऑपरेशन है तो उसको और लॉजिकल ऑपरेशन से रिप्लेस कर दें, या अगर हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेशन है तो उसको हम एंड लॉजिकल ऑपरेशन से रिप्लेस कर दें, तो जो हमको रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा ये फंक्शन उसके इक्वल होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x डॉट 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो अगर मैं बोलूँ x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी ये जो दोनों है, ये टर्म जो दोनों है वो इक्वल होंगे, ये डुअलिटी थ्योरम हमारा कहता है, ठीक है। सो अगेन आई से दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द डुअल ऑफ द बूलियन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द लॉजिकल एंड ऑपरेटर विद लॉजिकल और ऑपरेटर एंड जीरोज विथ वंस। फॉर एवरी बूलियन फंक्शन देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग डुअल फंक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी फंक्शन में अगर हम 1 को 0 से, 0 को 1 से रिप्लेस कर दें, और फंक्शन को एंड फंक्शन से, और एंड फंक्शन को और फंक्शन से रिप्लेस कर दें, तो हमको एक रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा, और वो जो फंक्शन होगा वो इक्विवेलेंट होगा हमारे ओरिजिनल फंक्शन के, ठीक है। तो हमेशा हमारे किसी भी फंक्शन का एक डुअल फंक्शन होगा। सो लेट अस मेक द बूलियन इक्वेशंस रिलेशंस दैट वी डिस्कस इन द सेक्शन ऑफ बूलियन पोस्टुलेट्स एंड बेसिक लॉज इनटू 2 ग्रुप्स। द फॉलोइंग टेबल शोज दीज 2 ग्रुप्स। तो ये रहा हमारा। अब हमारा ग्रुप 1 जो है हमारा एक फंक्शन है जो अभी तक हमने लॉस पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड, और इसी का हमने डुअल फंक्शन जो है यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 0 को 1 से रिप्लेस किया है, प्लस को डॉट से, दैट इज़ और को हमने एंड से रिप्लेस किया है, एंड एंड को हमने और से रिप्लेस किया है। सो दिस यू कैन सी हियर द डुअलिटी थ्योरम, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। देन कम्स द डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो दिस थ्योरम इज़ यूज़फुल इन फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन का क्या होता है, हमको हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हो और कहा हो कि उस फंक्शन का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना, उस पूरे फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो जनरली ऐसे केस में हम बूलियन फंक्शन की जो ये थ्योरम है बूलियन अलजेब्रा की, दैट इज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसका इस्तेमाल करेंगे। इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल और of at least 2 boolean variable is equal to the logical and of each complemented variable। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि x प्लस वाई, दैट इज़ x और y का मुझे पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द ईजी थ्योरम। सो अगर इसका उल्टा भी जो है वो पॉसिबल है, मतलब ये हमारी पहली थ्योरम बूलियन की डी मॉर्गन्स की पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट इफ़ x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना, दैट विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द 2 statements as you can see here also। so here it states that if x plus y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, और अगर हम इसी सेम इक्वेशन को है 3 वेरिएबल से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। सो दिस फॉलोज विद 3 वेरिएबल्स ऑल्सो, ओके। सो आई होप आपको अब डी मॉर्गन्स थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने पढ़ लिए बूलियन पोस्टुलेट्स, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द बूलियन लॉज, that is commutative law, associative law and the distributive law, and then we have studied 2 theorems of the Boolean algebra, that is duality theorem and the De Morgan's theorem।
अब क्या है, इन सब चीज़ों से हमको क्या फ़ायदा होगा, हमने जो भी अभी पोस्टुलेट्स, लॉज और थ्योरम्स पढ़े हैं, इससे हमें हमारा कोई भी फंक्शन अभी हमको मिलता है अगर, तो उसको सिंप्लीफाई करने में जो है वो काम आएगा. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द पोस्टुलेट्स, बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं. यहाँ पे हमें फंक्शन मिला है, ये जो आपकी स्क्रीन में, द फंक्शन इज़ f इज इक्वल्स टू पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू आर. तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ हियर. सो हमें फंक्शन यहाँ पे मिला है. हमने सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया है, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म आर इज़ कॉमन. तो अगर हम देखें तो हमारे पहले जो दो टर्म है इसमें हमारा आर कॉमन है, तो हम इस आर को जो है कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है. और दूसरे वाले टर्म में हम देख सकते हैं पी क्यू कॉमन है. तो जब हमने आर को कॉमन निकाला तो हमारे पास आता है पी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, और आर हमारा कॉमन हो गया. एंड इन द सेकेंड टर्म पी क्यू हमने कॉमन निकाला एंड आर डैश प्लस आर. तो आपने देखा है, हमने अभी जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें आर डैश प्लस आर इज़ इक्वल्स टू 1, है ना. ये हमने पढ़ा था कि एक्स प्लस एक्स डैश इज़ इक्वल्स टू 1. तो उस हिसाब से हमारा ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो 1 हो जाता है. पी क्यू हमारा वैसी का वैसा है. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पी स्लैश क्यू, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये जो है हमारा एक्स और गेट को, एक्स और ऑपरेशन को शो करता है. ठीक है. द टर्म फर्स्ट प्रेजेंट इन द पैरेंथेसिस जो है वो उसको एक्स और ऑपरेशन को शो करता है. तो हमने यहाँ पे जो है वो एक्स और लगा दिया, फिर हमारा आर बस बचता है. ठीक है. सो इस तरीके से जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. फाइनली हमारा जो इक्वेशन है, जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, वो हमारी सॉल्व होकर एक छोटी इक्वेशन हो चुकी है. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व इट, वी कैन मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन. देन वी कैन हैव अ सेकेंड एग्जाम्पल. तो इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आया है कि हमारे पास एक फंक्शन हमको दिया गया है और हमें इस पूरे फंक्शन का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना. तो सबने कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, हमने पूरा फंक्शन लिया और उसका हमने अलग से कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया. तो सबसे पहले हम इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे. और डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो हमारा यहाँ पे हमने इसको एक्स और यहाँ पे वाई समझ के अगर चलते हैं तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट और पी क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना. और उसके बाद हमने क्या सीखा है कि अगर हमने x डॉट वाई का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट की बात करें, दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट. ये भी बूलियन अलजेब्रा मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम से ही आया है. तो हमने अगेन इसको सॉल्व किया, वी गेट दिस. ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल को अगर हम डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वेरिएबल इटसेल्फ, है ना. तो अब हमारे पास डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट करने की हमारे पास दो इक्वेशंस, दो यहाँ पे टर्म्स आई हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा p प्लस क्यू डैश एंड p डैश प्लस q. ठीक है. अब हम इसको जो है ब्रेक करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को एंड वी गेट p डैश प्लस पी क्यू प्लस p डैश q डैश प्लस q डैश. एंड वी नो दैट x डॉट x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये हमने बूलियन पोस्टुलेट्स में पढ़ा था. तो हमारी ये जो दोनों टर्म है वो यहाँ पे हमारी 0 हो जाएंगी और हमारे पास फाइनली बचता है पी क्यू प्लस पी डैश क्यू डैश. ओके. सो हमारा जो पूरा कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बूलियन पोस्टुलेट्स जो हमने पढ़े हैं और बूलियन लॉज जो हमने पढ़े हैं और जो बूलियन थ्योरम हमने पढ़ी है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ. इसमें आपको ये फंक्शन दिया गया है एक्स वाई जेड का और इस पूरे फंक्शन का आपको जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है. दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू. और आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में ही पूछ सकते हो, और या फिर मेरे इस वीडियो के एंड में मेरी एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें भी पूछ सकते हो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज़